Yes. So if you people remember, sir, in the last class we talked about different trends. Actually, we tried to see how electronic configuration is going to be written for 15th group elements, how the atomic radii is changing, how ionization enthalpy varies as I go from one element to the other in this particular group. Okay, and then we saw how electronegativity is changing. Today we will continue and we will try to understand the physical properties of the 15th group elements. Okay, as I told you yesterday, sir, physical properties means here we will be talking about the melting point, boiling point, and other things. Okay, right. So have a look, sir. The first thing which you have to understand is all the elements of this group are polyatomic except whom? Nitrogen. You will see that nitrogen is the only element which is going to exist as a diatomic molecule. Rest elements over here are polyatomic. That means they will be having more than two atoms joined together to form a huge molecule. So phosphorus कैसे exist करता है? P4 बन के exist करता है. आपका arsenic, antimony, bismuth ये सब कैसे exist करते हैं? बड़े बड़े metallic सॉलिड्स बन के वो एग्जिस्ट करते हैं. बट नाइट्रोजन अकेला कैसे एग्जिस्ट करता है सर? एज अ diatomic molecule, and it is the only member of this group which is going to act as a gas or exist as a gas. अब सर ये तो हमें पहले से पता था that nitrogen will show anomalous behavior. तो ऑब्वियस सा बात है, ये देखो नाइट्रोजन यहाँ पे सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी में ही एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है. तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है सर? All other members of this group are polyatomic, but this particular member, the first member of the group, that is only diatomic. All other members are solids, whereas this particular member, that is our first member of the group, is a gas. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, that was a simple. Yes. Now, seeing the ionization enthalpy values and the electronegativity values which we discussed yesterday, isn't it clear to us that when I go from top to bottom, metallic character increases? Yes, sir. Yes or no? Yes. Metallic character increases. देखिए बेटा, what is the meaning of metallic character? Sir, the tendency to donate an electron. जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होते चला जाएगा, the capacity to lose an electron जो है इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता. तो ऑब्वियस सा बात है, एज आई एम गोइंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, फास्फोरस टू आर्सेनिक, आर्सेनिक टू एंटीमोनी, एंड सो ऑन, obviously the metallic character is increasing. But as discussed earlier, as I have already told you people about this, sir, nitrogen and phosphorus comes under non-metals, arsenic and antimony comes under metalloids, okay, and your bismuth comes under a metal. Yes or no? Yes, sir. Okay, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Bismuth. Okay, so nitrogen is a non-metal, phosphorus is also a non-metal, arsenic and antimony are metalloids, and bismuth comes under metal. Yes, Subhashri, your doubt will be cleared now, because हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कल डिस्कस नहीं किए थे. अभी डिस्कस करेंगे. अभी डिस्कस करते वक्त मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा. ठीक है, चलिए. तो फिर क्या ये सबको समझ में आया कैसे मेटलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से सबसे ऊपर लीस्ट मेटेलिक, इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं हमारा, दैट इज योर नाइट्रोजन एंड एज वेल एज योर फास्फोरस. Arsenic and antimony are metalloids and bismuth is a metal.
इसका रीजन भी हम लोगों ने बता दिया है। क्या है वो? सर, देयर आर टू रीजंस फॉर दिस। नंबर वन, द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग, एंड व्हाई इज दैट इंक्रीजिंग? बिकॉज द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो कुछ रहा भी है। बोल रहे हैं। हाँ, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। चलिए, दैट इज हाउ वी विल बी रिमेम्बरिंग दिस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो सबसे पहले क्या बोला सर? बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में भेजने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर हम लोगों का, दैट इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बहुत अच्छा बात। तो अब बताइए बेटा, whenever I want to boil a particular liquid, tell me the size of the liquid particles and the mass of the liquid particles, will they play an important role or not? यस सर। यस सर। मुझे एक पार्टिकल को लिक्विड फेज से मुझे उसे गैसियस फेज में भेजना है। If the size of the particle, if the mass of the particle is very, very small, it will be very easy to send it into the vapor phase. यस सर। But if it is a bulky and large molecule, then obviously, if it's heavy, then obviously it will be difficult in order to send it into the vapor phase. Yes, now, that is what happening as we move from top to bottom. Okay, as we move from top to bottom, as the size is increasing, their boiling points will also increase. देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट है। अब आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो काम करेगा। तो मैं यहाँ पे उसके बारे में क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब के सब सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए छोड़ के, ये तो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। फास्फोरस फास्फोरस के बीच में जो है, आर्सेनिक आर्सेनिक, एंटीमोनी एंटीमोनी, बिस्मथ बिस्मथ के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब इसके बीच में अगर वैंडरवॉल्स फोर्स होगा, उसके नीचे वाले के बीच में भी वैंडरवॉल, उसके नीचे वाले में भी वैंडरवॉल। इसमें अगर मेटेलिक बॉन्डिंग है, इसमें भी मेटेलिक बॉन्डिंग, इसमें भी मेटेलिक बॉन्डिंग, इसमें भी मेटेलिक बॉन्डिंग। क्योंकि ये सब में सेम है, मैं इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो फैक्टर्स है वो बता रहा हूँ मैं टॉप टू बॉटम जाते वक्त। सर थर्मल एनर्जी एक फैक्टर होगा सर? बोलो शुभम। सर वो थर्मल एनर्जी भी एक फैक्टर होगा या फिर नहीं होगा सर? सबसे पहले बेटा, थर्मल एनर्जी बोलने से ही तो टेम्परेचर है, हीट है ना? तो बिना हीट दिए कोई भी चीज बॉयल कैसे होगा बेटा? तो बॉइलिंग पॉइंट बोलने से ही द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू योर गैसियस फेज। तो थर्मल एनर्जी देने से ही वो बॉयल होता है। लेकिन मैं यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ थर्मल एनर्जी देने से कौन पहले बॉयल होगा, कौन बाद में बॉयल होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट, ओके, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम लोग थर्मल एनर्जी देते हैं, ऑब्वियस सा बात है, बॉयल करने के लिए थर्मल एनर्जी देना पड़ेगा। विदाउट हीटिंग अ सब्सटेंस वो बॉयल कैसे होगा, राइट? सो हम लोग बॉयल करने के लिए थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, बट what is happening, okay, when you are trying to give heat to the system, तो क्या हो रहा है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, जिनका मास कम है, वो इजीली वेपर फेज में जाते हैं। बट जो बल्कि मॉलिक्यूल्स हैं, बल्कि एटम्स हैं, जिनका मास बहुत ज्यादा है, वो वेपर फेज में बहुत ही मुश्किल से जाते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब तनुश्री मुझे पूछ रही है कि सर नाइट्रोजन तो गैस है ना, इसीलिए तो मैंने बोला बेटा, इसीलिए तो मैंने बोला नाइट्रोजन एनोमलस बिहेवियर है, उसे छोड़ के बाकी सबके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं करके मैं बोला। अब नाइट्रोजन गैस है बोलने से यह हर टेम्परेचर में गैस ही रहेगा क्या? -150 डिग्री सेल्सियस में ये क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। यस और नो? यस सर। तो -150 डिग्रीज में लिक्विड है,
से मैंने ले आया 12 डिग्री सेल्सियस, तो सोचो कि ये गैस बन गया, तो -12 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट है। तो नाइट्रोजन हमेशा गैस थोड़ी रहता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो भी तो लिक्विड ही हुआ होगा। तो एक टेम्परेचर पे तुम्हारा नाइट्रोजन भी तो लिक्विड फेज से गैसियस फेज में गया होगा ना, तो दैट टेम्परेचर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। यस और नो? Yes. Yes, sir. चलिए, तो शुभम, डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर। चलिए, तो अब हम लोगों को क्या याद रखना है सर? आप लोगों को एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट याद रखना है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। खत्म, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी Yes. ने Yes, sir. पूछा, अगर किसी ने आप लोगों को पूछा व्हाई, तो आप लोग क्या बताएंगे? इट इंक्रीजेस because as we go from top to bottom, the mass of these atoms and their size both are increasing. Increases. Yes. Yes. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है मेल्टिंग पॉइंट। Now we will come and we will talk about the melting point of these elements. Let us see what our textbook says. Have a good look. But the melting point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth. देखिए, बड़ा मजेदार चीज है। क्या हो रहा है? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक जब हम लोग जाते हैं, तो नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक जो है, आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, है ना? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बोलो शुभम। सर वो नाइट्रोजन तो एनएमएलएस भी शो करता है ना सर, तो वो भी उसका भी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा ना सर? एक सेकंड के लिए सोचो बेटा, तुम लोग क्या बोल रहे हो, सोचो एक बार। हाँ, अरे नाइट्रोजन का भी तो एक मेल्टिंग पॉइंट होता होगा ना कुछ तो मेल्टिंग पॉइंट होता होगा। इंक्रीज कर रहा है मतलब नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं कर रहा है। टॉप टू बॉटम जाते वक्त अगर नाइट्रोजन -170 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेल्ट करता है, तो फास्फोरस जो है -170 से ज्यादा टेम्परेचर पे, मतलब फास्फोरस जो है हमारा, से फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, तो आर्सेनिक जो है ये 75 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। As we go from top to bottom, the melting point of these elements will increase. आए समझ में? Yes, Yes. sir. लेकिन अब यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। ओके, ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने दिया, एज यू गो फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, फास्फोरस टू आर्सेनिक, द मेल्टिंग पॉइंट कीप्स इंक्रीजिंग। लेकिन from arsenic to antimony, from arsenic to antimony when you go, melting point decreases, and from antimony to bismuth when you travel, again melting point decreases. तो अब हम लोगों को समझना है, सर ऐसा क्या हो गया कि नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होते गया, बट जैसे ही आर्सेनिक से एंटीमोनी और एंटीमोनी से बिस्मथ हम लोग चले गए, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। ऐसे क्यों? ओके, सो देयर वी विल टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट रीजंस। नंबर 1, क्या आप लोगों को सॉलिड स्टेट याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वहां पे क्या हम लोगों को वहां पे मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स याद आ रहा है? Yes, sir. यस याद कीजिए, वहां पे हम लोगों ने मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया बेटा? मेटेलिक Metallic बॉन्ड bond. के बारे में बात किया। क्या था मेटेलिक बॉन्ड का? मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, more the number of electrons participating or more the number of electrons which are donated to the sea of electrons,
Stronger will be the metallic bond. याद कीजिए, हम लोग बात किए हैं कि Yes, नहीं sir. इसके बारे में? Yes. तो याद कीजिए, हम लोगों ने वहां पे एक्सप्लेन किया था why sodium is a soft metal which can be cut by using a knife, but why iron cannot be cut by simply using a knife. ये सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था. Yes, sir. तो देखिए, as you go from top to bottom, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से एक तो आपका इनर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड हो गए हैं. दैट मींस दे आर नॉट फ्री टू मूव. दैट मींस आपका एंटीमोनी और बिस्मथ, एक्चुअली आर्सेनिक से ही स्टार्ट होता है, बट स्टिल आर्सेनिक में उतना स्ट्रॉन्गर फोर्स नहीं है. बट एंटीमोनी और बिस्मथ में आते आते क्या हो जाएगा सर? द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट freely donated to the sea of electrons. इसके वजह से क्या हो जाएगा? इसके वजह से उनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. This is one point. Yes, sir. Now we will go for the second point. Everything must be written in your notebooks. I am talking about very, very important points. Okay. Now we will talk about the second point. What is the second point, sir? Let us discuss now. देखिए सर, हम लोगों को पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जब बनते हैं तो हमारे यूनिट सेल जो होते हैं, इनमें जो कॉर्नर्स हैं और जो लैटिस साइट्स हैं, ओके, वहां पे जो है हमारे एटम्स जो जाके ऑक्युपाई करते हैं उन साइट्स को. एक्चुअली आप एंटीमोनी और बिस्मथ तक आते आते साइज इतना बड़ा हो जाता है दैट दे आर नॉट प्रॉपरली फिट इनटू योर क्रिस्टल लैटिस, जिसके वजह से भी तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है. तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट एंटीमोनी और बिस्मथ का क्यों कम है आर्सेनिक से, और वो आर्सेनिक तक इंक्रीज हुआ लेकिन आर्सेनिक के बाद डिक्रीज क्यों हुआ, मैं उसका दो रीजंस बता रहा हूं आप लोगों को. देयर आर टू रीजंस व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. नंबर वन, due to the inert pair effect, the inner s orbital, the outer s orbital or electrons are strongly pulled by the nucleus, due to which they are not being donated to the sea of electrons, जिसके वजह से metallic bond strength जो है decrease हुआ. Number one. Number two, sir, as the size of the atoms is increasing, they do not fit properly into the crystal lattice, due to which again symmetry थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है एंड वहां पे क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. कितने लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सर वो सेकंड वाला पॉइंट कर सर. देंगे. हाँ सर, वो वाला सेकंड. सेकंड वाला पॉइंट मैंने बोला, when you are having a crystal lattice, सब सॉलिड स्टेट भूल के बैठ गए हैं. छी 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 छी. देखो, when you are having a crystal lattice, हम लोगों को पता है that हमारे एटम्स जो हैं ये प्रॉपरली एक क्रिस्टल लैटिस में पैक होके रहते हैं. तो अगर मेरा क्रिस्टल लैटिस का जो लैटिस पॉइंट्स है, मतलब एक एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसका साइज बहुत लार्ज हो जाएगा बोलने से इस क्रिस्टल में फिट प्रॉपरली नहीं होंगे. क्रिस्टल में ये लार्ज एटम्स जो हैं ये प्रॉपरली पैक नहीं हो पाते हैं. अगर ये प्रॉपरली पैक नहीं होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है. क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. एक परफेक्टली पैक्ड क्रिस्टल अगर होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा रहता है, हाई रहता है, बिकॉज वो प्रॉपरली पैक्ड है, राइट, सिमेट्री है. बट अगर वो अच्छे से पैक्ड नहीं होता है क्रिस्टल लैटिस तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है जनरली लो रहता है. क्या ये क्लियर है? यस सर. Yes. तो अभी हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज में आज हम लोगों ने क्या सीखा? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे हम लोगों ने. क्या है वो सर? नंबर वन, वी लर्नड दैट if we are talking about boiling point, then it will simply increase as we go from top to bottom. But if we are talking about your melting point, then it increases up to arsenic, but later on it decreases. क्या ये Yes, sir. clear है?
हाँ सर क्लियर। यस ओके, अब आते हैं हम लोग शुभश्री के डाउट पे। कल शुभश्री ने टेबल में एक चीज गौर किया। क्या गौर किया? देखो, शुभश्री ने मुझे मैसेज किया था कि सर हम लोगों ने मीन्स उसने इस टेबल में एक पॉइंट देखा। क्या देखा उसने? सर आर्सेनिक, इसने टेबल में क्या देखा? आर्सेनिक का बॉइलिंग पॉइंट इसने देखा 888 केल्विन देखा। ओके, बट आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट इसने देखा 1089 केल्विन। ओके, ध्यान से देखिए, इसने एक चीज गौर किया यहाँ पे जो कि आप लोग भी देख सकते हैं। What did Subhashri see? यस सर। That arsenic का melting point boiling point से भी हायर है, बॉइलिंग पॉइंट से भी हायर है। लेकिन आप लोगों को एक चीज और गौर करना था सर। ओके, आप लोगों को एक चीज और देखना था शुभश्री, एक चीज और देखना था तुमको। क्या देखना था? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो लिखा हुआ है वहां पे ध्यान से देखो बेटा, वहां पे 1089 टू द पावर ई दिया हुआ है, 888 टू द यस पावर एफ। मतलब वहां पे कुछ डिनोशंस हैं ई और एफ करके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई? ई देखो, ग्रे अल्फा फॉर्म एट 38.6 एटमॉस्फेयर्स। मतलब ये नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हम लोगों ने ये मेल्टिंग पॉइंट जो है डिसाइड नहीं किया है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्सेनिक को हम लोगों ने लिया और उस आर्सेनिक का हम लोगों ने पता किया मेल्टिंग पॉइंट, वो भी कहां? एट 38.6 एटमॉस्फेयर्स। मे बी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में ये 1089 से काफी कम होता होगा। क्या अभी ये डाउट क्लियर हो रहा है शुभश्री? यस हाँ, इसीलिए तुमको वहां पे मेल्टिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट से भी हायर लगा। एक्चुअली शुभश्री को क्या डाउट हो गया कि सर इसका मतलब क्या है, पहले आर्सेनिक बॉयल हो जाएगा फिर उसके बाद आर्सेनिक मेल्ट होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, वो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये जो दिया हुआ है ये हम लोगों का जो है लैबोरेटरी कंडीशंस में जो कुछ पता करके हम लोगों को दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल 888 जो हम लोगों का दिया हुआ है, क्या बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है आर्सेनिक यस सर। का, वहां पे एफ लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, एफ जो है सब्लिमेशन टेम्परेचर है। ध्यान से देखिए, हाँ सर। सब्लिमेशन टेम्परेचर, दैट मीन्स the solid arsenic will directly go into your vapor phase. That means there is no liquid phase in between. तो ये लिक्विड फेज लाना है, मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल कंडीशन में जाना पड़ेगा। वो कब? 38.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाना पड़ेगा। क्या अब आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। यस सर Yes, यस सर and I'm really happy that people are reading the textbook. Very good, Subhashri, that you have found such a beautiful point over there कि सर आर्सेनिक जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, ये कैसे पॉसिबल है? ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, बट द पॉइंट इज आर्सेनिक सब्लाइम होता है। क्योंकि ये सब्लाइम होता है तो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस एट हाई प्रेशर हम लोग इसका मेल्टिंग पॉइंट पता करते हैं। अदरवाइज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ मेल्टिंग पॉइंट फॉर आर्सेनिक। ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन एंड ब्यूटीफुल सा लॉजिक। क्या सब लोगों को ये यस सर। समझ में आया? यस सर। यस यस सर ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट एलोट्रोपी। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रोपी? कितने लोगों को पता है? सर वो एक और दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज रखता है। हाँ, कैसे बताएंगे हम लोग एलोट्रोप्स? देखो, when a given element can exist in more than one physical forms, then we will call it as nothing but allotropes of the same element. What is the meaning of these physical forms? देखो तो सर, कार्बन को ही ले लीजिए आप लोग। हमारे पास डायमंड्स हैं, डायमंड भी प्योर कार्बन है।
हमारे पास कोल है, ये भी प्योर कार्बन है। हमारे पास ग्रेफाइट है, ये भी प्योर कार्बन है। हम लोगों के पास बकमिंस्टर फ्लोरीन है, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये भी प्योर कार्बन है। दैट मीन्स ये सब प्योर कार्बन है। दैट मीन्स ये सारे के सारे एलोट्रोप्स हैं किसके? कार्बन के। क्या ये मीनिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. When the same element can exist in more than one physical form, then we will say that it shows allotropy. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए, नाइट्रोजन को छोड़ के, नाइट्रोजन अकेले सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है N2 गैस, दैट्स इट। इसे छोड़ के बाकी सब एलोट्रोपी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को एलोट्रोपी का बात करूं, ओके, एलोट्रोप्स का बात करूं, तो फास्फोरस का जो है ना सर, बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। किसका? फास्फोरस का। If we have a look at phosphorus, phosphorus can exist as white phosphorus. Phosphorus can exist as red phosphorus. Phosphorus can exist as black phosphorus. In under black phosphorus, again, it can exist as alpha black phosphorus, beta black phosphorus. So these are so many allotropic forms of your phosphorus. Okay, so I hope you people understand this. Yes, sir. Yes, सो सेम फॉस्फोरस इतने सारे जो है हम लोगों के फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, फिजिकल फॉर्म्स में। ध्यान से देखो, ये तो मैं पढ़ाऊंगा ये आगे, फिर भी यहाँ पे क्योंकि आया है एलोट्रोप्स करके तो बता दूं, व्हाइट फॉस्फोरस जो है ना P4 करके एग्जिस्ट करता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस जो है ना ये P4 का एक पॉलीमर है। मतलब ऐसे लंबा चेन रिपीट होगा, P4 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 का एक लंबा सा चेन रिपीट होगा, right? So in this way they exist in different physical forms. Okay, so the same element, if it can exist in more than one physical form, then simply we will call it as nothing but their allotropic forms. क्या ये clear हो गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अब जो ध्रुव तुम जो पूछ रहे हो ये तो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे इनमें से कौन सा रिएक्टिव होगा, जब हम लोग इनका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा। तो अगर तुम मुझे पूछोगे, अभी जानना चाहोगे, तो मैं बता दूं, white phosphorus is the most reactive one among all of these. White phosphorus, red phosphorus, black phosphorus, alpha beta में से white phosphorus is the most reactive one. और ऐसे Yes. क्यों, वो भी बात कर सकते हैं हम लोग। सर व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस में जो है आप लोगों का एंगुलर स्ट्रेन जो है सबसे ज्यादा है। मतलब चार फॉस्फोरस बहुत क्लोजली एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में पैक्ड है। इतना क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनका बॉन्ड के बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना, इनके केमिकल बॉन्ड्स के बीच में स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहता है, जिसके वजह से वो एक दूसरे को पुश करते रहते हैं। तो ये रेडी रहते हैं, कोई भी आएगा हम लोग उसके साथ रिएक्ट कर देंगे करके। सो दैट इज व्हाई अमॉन्ग द एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस द व्हाइट फास्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव वन। क्या ये क्लियर sir. है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now do you people understand properly? सर नाइट्रोजन अकेले सिर्फ एक ही फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे हम लोगों के जो है शो करते हैं हम लोगों का एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एक एग्जांपल मैंने फास्फोरस का दिया, जहां पे वो व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस एग्जिस्ट कर सकता है। चलिए, once we are done with this, that means we have understood all the physical properties. एक बार अगर मैं इसको राउंड अप कर दूं, सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है सर? नंबर 1 सर, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल ऑफ देम आर सॉलिड्स। नाइट्रोजन Yes. अकेले एग्जिस्ट करता है गैस। नाइट्रोजन अकेले डायटोमिक है, बाकी सब पॉलीएटॉमिक। Polyatomic. मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। बहुत अच्छा बात। इसका रीजन हम लोगों ने बताया सर, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बताया सर? एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट,
आपका नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल्स है, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी मेटलॉइड्स हैं, और आपका बिस्मथ जो है वो मेटल है। मेटल्स। डन। अब दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखें, क्या है वो? बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते जाएगा, वेरी गुड, बट मेल्टिंग पॉइंट में एक ट्विस्ट है, आर्सेनिक तक इंक्रीज होगा बट आर्सेनिक के बाद डिक्रीज होगा बिस्मथ तक। क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. इसके पीछे रीजन भी हम लोगों ने बात किया है, और हम लोगों ने लास्ट में बताया एलोट्रोपी के बारे में, जहां पे हम लोगों ने बताया कि नाइट्रोजन अकेले एलोट्रोपी शो नहीं करेगा, इसके अलावा बाकी सब के सब एलोट्रोपी शो करेंगे। डन, खत्म। यस सर। राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, मतलब हमारे 15th ग्रुप एलिमेंट जो है कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, इसको और डीपली हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्टिंग में तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को, 15 ग्रुप एलिमेंट मतलब +5 जरूर दिखाएगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से +5 से +3 एक 2 यूनिट कम, दैट इज योर +3 दिखाएगा करके, ये बात कर चुके हैं। बट Yes. इसके अलावा हम लोग और डीपली बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, तो ध्यान से देखिए। The electronic configuration for the group 15 elements is NS2NP3. Clear है? Yes sir. Yes, sir. Now NS2NP3 है, मतलब आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, NP में 3 इलेक्ट्रॉन है। नाउ आप लोगों को इस ग्रुप 15 में हो, या फिर 16, 17, 18 हो, या फिर आप लोगों का 13, 14 हो, कोई भी पी ब्लॉक का ग्रुप हो, आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऐसे ही पता करेंगे। देखिए अभी, what are the different stable oxidation states which are possible for any given element? ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहला है सर, इट विल अचीव एन ऑक्टेट। ऑक्टेट अचीव करके स्टेबल होता है, यस और नो? Yes sir. So 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? 15 तो लूज कर देंगे। Receive 3 electrons from outside. They will receive 3 electrons from outside. They will not lose, they will receive. They will receive 3 electrons from outside because they are already having 5. They will receive 3, it will become 8. इसके अलावा देखिए, when they receive 3, you see what is happening? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, क्या आप लोगों को दिख रहा है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आया कि नहीं यहाँ पे? Yes sir. Stable. Yes, sir. तो हम लोगों को पता है कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसके Yes, sir. अलावा अब ध्यान से देखिए, तो कंप्लीटली फिल्ड के बाद थोड़ा ध्यान से दीजिए, देखिए आप लोग, जो मेरा p ऑर्बिटल है इसमें हाफ फिल्ड ऑलरेडी है, तो हाफ फिल्ड तो स्टेबल होता ही है। Yes sir. बट इसके अलावा एक और क्या स्टेबल स्टेट है इसके पास? सर ये अगर चाहेगा तो कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल बना सकता है कि नहीं? इसके पास Yes, जो sir. 3 इलेक्ट्रॉन है इनको भी पूरी लूज करेगा। लूज कर तो हमें पता है कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। Yes sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर Yes. में मैंने आप लोगों को बताया था, कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली वैकेंट। These are the 3 stable oxidation states which are electronic configurations which are possible, because in तीनों स्टेट में क्या होता है, आप लोगों का एलिमेंट्स जो है ना सर, वो ना ऑर्बिटल्स जो है वो सिमेट्रिक हो जाते हैं, उनका एनर्जी जो है इक्वल हो जाता है, ये डीजेनरेट हो जाते हैं। Yes sir. यस, ओके। सो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया? +3। +3. और एक क्या है देखो, तो
अपना s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स को भी तो डोनेट कर सकता है। कंप्लीटली वैकेंट होगा मतलब Yes, s sir. और p Plus दोनों 5. को कंप्लीटली डोनेट कर देगा। +5. तो कंप्लीटली वैकेंट होने के लिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकता है। दैट मीन्स ये कितना शो कर सकता है, +5 भी +5. शो कर सकता है। कितने लोगों को समझ में आया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. समझ में Sir. Yes, sir. तो यहां से हमें क्या समझ में आया सर? द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर 15th ग्रुप एलिमेंट्स आर -3 +3 +5। ओके, देखो बेटा किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताना जरा। No, sir. No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। अब देखो तो यहीं से हम लोग सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेंगे। अब कितना मजा आएगा देखो तो हम लोग को। अब 16th ग्रुप का देखो, NH2NP4 हो जाएगा। Yes, sir. यस और नो? देख के बताओ बेटा आप हाँ लोग। सर, हो जाएगा। Yes, sir, हो जाएगा। NH2NP4 हो जाएगा। NH2NP4 मतलब देखो तो NS में 2, NP में 4 होगा कि नहीं? अब देखो सबसे sir. पहले 16th ग्रुप का एलिमेंट्स के लिए भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से हैं बोलने से सबसे पहले सर ये ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव करेगा। यस Yes, और sir. नो? हाँ सर, Yes, करेगा। sir. माइनस सो -2 होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा सर। होगा sir. -2 होगा। -2 के अलावा सर ये कंप्लीटली वैकेंट होने के लिए, p ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना पड़ेगा? सर 4 4. 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट। +4 4। और जितने भी आपके p और s सब में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे डोनेट करने के लिए कितने हैं? 6. +6 राइट। तो अभी आप लोगों को क्या पता चल रहा है यहाँ पे? मतलब मैंने अभी आप लोगों को ऐसा एक लॉजिक बताया, आप लोग अभी कोई भी ग्रुप का p ब्लॉक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से होंगे, आप लोग बस उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता देंगे कि कौन कौन सा उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर, आया। Yes, Yes, चलो sir. तो इसी तरह से हम लोग चलो तो 17th ग्रुप एलिमेंट का भी लिख देते हैं। चलो तो 17th ग्रुप एलिमेंट्स के लिए सर 17th ग्रुप एलिमेंट्स के लिए NH2NP क्या हो जाएगा हम लोगों का? 5 तो हो 5 जाएगा। हो जाएगा। सो NH2NP 5 हो गया, मतलब ऑलरेडी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं वैलेंस सेल में? 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। -1 एक होगा सर, गेन। -1 होगा। तो +1 एक भी होगा होगा सर। इनका -1 जो कि ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए हो रहा है, और इसके अलावा क्या होगा? तो +5 भी। +5. +5 एक होगा, और इसके अलावा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +7 होगा। देखे आप 7. लोगों ने सिर्फ 15 ग्रुप पढ़ा और 16th खत्म हो गया, 17th खत्म हो गया, 18th भी, और उधर 13 14 फर्स्ट ईयर का भी खत्म हो जाएगा। देखो तो बेटा जरा हम लोग अगर अभी बोलो बेटा। सर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाफ फील्ड में नहीं रह सकते। कहां से किस में बोल रहे हो? NH2NP5 में बोल रहे हो? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। अब कौन? जिग्नेश पूछा? विभूति कौन पूछ रहा है? जिग्नेश सर। जिग्नेश पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ये भी देखते हैं हम लोग। अब जिग्नेश हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि सर क्या ये यहां से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या ये एक और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता है क्या? द आंसर इज यस, शो कर सकता है। ये लोग +2 भी शो कर सकते हैं, बट ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। मतलब हम लोग जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं उनमें ये +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा, बट ये ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। ये कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करूंगा, बट मैं अभी कौन सा बात कर रहा हूं? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। चलो तो अब मुझे फटाफट
अभी हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, ठीक है, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे कि हम लोगों को क्या समझ में आया, यहां से देखते हुए हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे, ठीक है। पहले मुझे पूरा लिख देने दो, उसके बाद आप लोग लिखोगे। मेरे पास है 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड 18th ग्रुप, जो कि मैं बार बार बोलता हूं 18th ग्रुप इसके अंडर नहीं है, ये कंप्लीटली अलग है, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा मैं, बट स्टिल। तो 17th ग्रुप का क्या है सर, NS2, सॉरी 13th ग्रुप का NS2 NP1, 21 ये क्या है NS2 NP2, NP2 NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6 हो गया। चलिए, सबसे Yes, पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग लिखेंगे वो आप लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो वो क्या है सर, 13th ग्रुप है मतलब इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, 14th ग्रुप है मतलब इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा, 15th ग्रुप मतलब इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, +6 होगा, +7 होगा, इस तरह से ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब losing all the electrons which are present in their valence cell, yes or no? Yes sir. यस। अब मुझे एक बात बताओ, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से जैसे जैसे एक ग्रुप में हम लोग नीचे जाते हैं, अपना s इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलक्टेंट हो जाएंगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से, यस और नो? Yes sir. हाँ सर। यस सर। इसके वजह से एक ऑक्सीडेशन स्टेट रियलाइज होगा। बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो? नहीं, ओके। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा एक और ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है, जो कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके रिलक्टेंस के वजह से होता है, जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से आ रहा है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब Yes sir. जो आपका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है इससे 2 यूनिट कम वाला एक ऑक्सीडेशन Plus one. स्टेट हमेशा आप लोगों को मिलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes Yes, sir. sir. ओके, इसके Yes, अलावा इसके अलावा ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी आएगा। तो आपका 13th ग्रुप के लिए ऑक्टेट जो है +3 होने से ही सेटिस्फाई हो जा रहा है। एक्चुअली +3 डोनेट कर देने से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अलग से कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिख रहा है आप लोगों को। +4 में भी वही हाल है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने से इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। ये लोग रिसीव नहीं कर सकते हैं बाहर से इलेक्ट्रॉन्स, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा नहीं है। बट 15 ग्रुप आने से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव कर सकते हैं, 16th ग्रुप आने से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव कर सकते हैं, 17th ग्रुप आने से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव कर सकते हैं। क्या अभी सबको हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सा टेबल समझ में आ गया कि नहीं? अब Yes, हम sir. लोगों Yes, को sir. सर कोई भी एक Yes, ग्रुप का एलिमेंट अगर हम लोगों को दे देगा, इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से ग्रुप ऑक्सीडेशन से 2 यूनिट लेस का एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होगा। नंबर 3, हम लोगों का सर ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकता है। बताओ बेटा, कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? Yes Yes, sir. sir. yes. नो सर। बोलो, क्या समझ में नहीं आया? सर वो 13th और 14th का थोड़ा समझ में नहीं आया सर। 13th और 14th में क्या हो रहा है, इनका न्यूक्लियस के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, या इनका न्यूक्लियस जो है इतना बड़ा नहीं है कि बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। क्या ये कभी भी पॉसिबल होगा? गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, losing 3 electrons is much more easier as compared to gaining 5 electrons, yes or no? यस सर। तो ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए क्या ये लोग 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर पाएगा क्या? आंसर इज नो, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। देखो, इसके पास क्या हो जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है,
तो आपका 15th ग्रुप में आ गए, 16th ग्रुप में आ गए, 17th ग्रुप में आ गए, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से गेन कर सकते हैं। फिर भी ये कितने गेन कर रहे हैं? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल है। बट 5-5 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स, ये एलिमेंट्स क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट फुलफिल कर लेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट फुलफिल कर लेंगे। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट कैसे फुलफिल होगा, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यस और नो? यस सर। अब ये क्या कर सकता है एल्यूमिनियम? आपका 3 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करके क्या हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2s2 2p6। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये आपका नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ओके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसीलिए वो जो ऑक्टेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो 13th और 14th ग्रुप में क्या हो जा रहा है? ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव नहीं कर रहे हैं, ये लोग लूज करके ही जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी में ये लोग ऑक्टेट फुलफिल कर ले रहे हैं। क्या सबको अभी ये टेबल समझ में आ गया बेटा? Yes, यस सर। सर। मतलब हम लोग इतना लॉजिकली हम लोग पी ब्लॉक को पढ़ेंगे कि आपका 15th ग्रुप खत्म होते होते आपको पता चला कि सर 16 भी खत्म हो गया, 17 भी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक्स जैसे जैसे वैलिड है, सेम लॉजिक्स उधर भी वैलिड है। जैसे आप लोग बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड पढ़े थे, राइट? या फिर आप लोग कोई भी ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉनिक से एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ रहे हैं, आयनेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ रहे हैं, राइट? द सेम ट्रेंड्स विल फॉलो इवन फॉर द नेक्स्ट ग्रुप्स। यही तो फायदा है पीरियोडिक टेबल का। अगर एलिमेंट्स ऐसे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं रहता, क्या हम लोगों को ये आसान होता ऐसे पढ़ना? नो सर। नो सर। बिल्कुल भी नहीं होता। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर periodic table and that is the importance of this. So I hope you people have understood about the stable oxidation states of these compounds. Yes or no? यस सर। यस सर। अब मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था सर, द ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो हमेशा जो है आप लोगों को एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। तो नाइट्रोजन का साइज इतना छोटा है कि आप लोग इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। मतलब नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बहुत ही रेयरली शो करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। तो जनरली नाइट्रोजन क्या शो करता है? सिर्फ -3 शो करता है। नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ किसके साथ शो करता है बता रहा हूं, देखो। नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उनके साथ ही शो करता है। कौन है वो? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन। Nitrogen only when it is coming in contact with oxygen and fluorine, when it is forming compounds with oxygen and fluorine, will show your positive oxidation state. Otherwise nitrogen will always show -3 oxidation state. क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। तो ये जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपका नाइट्रोजन शो करता है, ये बहुत सारे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन कौन सा है ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कल में पूरा एक आधा क्लास हम लोगों का जाएगा एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन पढ़ने। क्या क्या एनोमलस प्रॉपर्टीज शो करता है ये, क्यों ये अलग बिहेव करता है बाकी लोगों से, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा क्या डिफरेंट है, ये सब चीज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आई होप सबको समझ में आया आज का क्लास। यस सर। Yes, sir. See sir, I will tell you this again and again. Keep watching the previous lectures again and again or else you people will simply forget. Okay, ये बहुत लॉजिकल चीजें हैं। Keep watching the previous lectures
again and again. Don't worry, put it at 2x and watch it, but keep watching these again and again. Only then you will be properly following your P block properly, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. तो ठीक है, आज जितना पढ़ाया गया है उसको दोबारा रिवीजन कीजिए. ओके, हम लोग मिलते हैं कल. चलिए, बाय बाय. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank Bye. you, sir. Bye. वेलकम, बाय.